Hello students, today in this video we will do our fourth poem, How to Tell Wild Animals, and the poet of this poem is Carolyn Wells. This poem tells you different ways to identify wild animals. This poem tells you different ways to identify wild animals. Tell could be replaced by identify. ठीक है, ये हमें डिफरेंट तरीके बताते हैं कि हम वाइल्ड एनिमल्स को कैसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड दोज आर वेरी फनी वे, यू कैन से दैट. बड़े मजाकिया से उसने तरीके बताए हैं. एंड द डेंजरस वेज दोज वर टोल्ड बाय कैरोलिन वेल्स. अलग अलग तरीके हैं. मेनली इन दिस पोएम शी हाईलाइटेड nonsense words, the main thing which you can say used by the poet. Nonsense words, there is no sense of the poem. उसके पोएम के अंदर जो उसने वर्सेस यूज़ किए उनमें कोई सेंस ही नहीं बन रही है. ठीक है, इट्स नॉट हैविंग एनी थीम, इट्स नॉट हैविंग एनी मैसेज. ना इसमें कोई थीम है ना कोई मैसेज है. एंड वट इज़ यूज्ड हियर? नॉनसेंस वर्ड्स इज यूज्ड. देयर इज नो सेंस ऑफ दिस पोएम. ओनली दिस पोएम टेल्स different ways to identify wild animals. And the wild animals which are included in this poem, I tell you the list of those: lion, Asian lion, tiger, Bengal tiger, that is used, and a leopard, that is used, and beside that bear and crocodile. How you can identify crocodile? How you can identify hyena? How you can identify chameleon. ठीक है, chameleon. So these different ways are used by the poet to identify those wild animals. ये अलग अलग तरीके जो है वो पोइट ने बताए हैं इन एनिमल्स को क्या करने के, आइडेंटिफाई करने के. ओके, सो व्हाट इज यूज्ड इन दिस वन? नॉनसेंस इज यूज्ड. बिसाइड दैट पोएटिक लाइसेंस, वन मोर थिंग दैट इज यूज्ड इन दिस पोएम, पोएटिक लाइसेंस इज आल्सो यूज्ड. शी वाज फेमस फॉर दीज थिंग्स. कैरोलिन वेल्स इज फेमस फॉर यूजिंग नॉनसेंस वर्ड्स एंड ह्यूमर इन हर पोएम्स. मेनली शी यूज दीज थिंग्स इन हर पोएम्स, नॉनसेंस वर्ड्स एंड ह्यूमर. बड़ी फनी जो पोएम वो लिखती थी, और उनमें कोई those poems are not having any theme, not having any message. And this same situation is also here in this poem. This poem is not having any theme, any message. This is only telling the different ways how to identify these animals: Asian lion, Bengal tiger, leopard, bear, crocodile, and hyena, and a chameleon. Okay, and poetic license means wrong spellings are used. Grammatical terms are not used by the poet. Beside that, the spellings, there is no foundation regarding the use of correct spellings. And she also used a lot this particular license. इसको उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया है. Now start reading. अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से समझना. ठीक है. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you, you are dying, you will know it is the Asian lion. अगर आप कभी ईस्ट के जंगल में जाते हैं, and then you advance means to face. If you face a large and yellow color animal, tawny yellowish color, a large and yellowish color animal, and that animal roars at you, अगर वो एनिमल आप पे दहाड़ता है, रॉयरिंग करता है, रॉयर इट्स द साउंड ऑफ ए लायन, एंड यू आर नियरली टू बी डाइड, और ही इज नियरली टू बी किल यू, एट दैट टाइम यू विल नो दैट एनिमल इज अ एशियन लायन. आपको पता लग जाएगा कि वो एनिमल क्या है, एशियन लायन है. ओके, सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एशियन लायन. अब ये क्वेश्चन इसमें से बेटा यही बनेंगे जो मैंने आपको लिस्ट बनाई ना, दिस विल बी आस्क्ड एज क्वेश्चन. हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस वन, हाउ यू आइडेंटिफाई दिस वन. सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एशियन लायन? This animal is found in the jungle of east, and beside that it roars. It is having yellowish color, and it roars. ठीक है, वो क्या करता है, दहाड़ता है. With the help of these characteristics we can identify Asian lion. Is it clear? Then second one is, अब सेकंड की बात करते हैं. वर्ड्स आपने लिख ही लिए होंगे, टॉनी येलोइश कलर, एंड एडवांस फेस, और कोई ऐसा है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ डाइन, ये अब ये पोएटिक लाइसेंस का यूज़ होना शुरू हो गया है. डाइन, ये है डाइंग, मरना, DYING. वो पोएटिक लाइसेंस यूज़ किया पोएट ने, इसलिए डाइन यूज़ किया है. ठीक है. नाउ अब राइमिंग स्कीम भी साथ साथ देख लो. देखो, चांस, ईस्ट, एडवांस, बीस्ट. ठीक है, तो चांस आपका क्या बन गया, ए. चांस में आपकी जो है वो क्या बन गया, ए.
चांस में हो गया ए। तो चांस किसके साथ मैच कर रहा है, एडवांस के साथ, तो यहाँ भी क्या हो गया आपका ए। ठीक है, ईस्ट किसके साथ कर रहा है, बीस्ट, तो यहाँ बी, ए बी और ए बी, डाइन और लाइन सी। ठीक है, ए बी सी। पोएट्री राइम स्कीम आपकी क्या होगी पोएम के अंदर, ये आप मेंशन कर लेंगे अपनी बुक के अंदर। राइम स्कीम है आपकी बेटा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, यू विल राइट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाइए। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स you and with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If you are roaming strolling, wandering, if you are wandering ऐसे घूमना, ठीक है, कहीं चहलकदमी करना, उसे बोलते हैं रोमिंग। इफ़ यू आर रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल सिंपल एंड वाइल्ड, यू नो, जो आपके वाइल्ड एनिमल्स आपको पता ही हैं, जो जंगलों में रहते हैं, विच आर नॉट कीप एज पैट, जिन्हें अभी पेट के तौर पर नहीं रखा जाता। नोबल वाइल्ड बीस्ट विशेज यू, ठीक है, एंड ही इज हैविंग ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक लाइन्स ऑन येलो ग्राउंड, and when he is nearly to beats you, then you will, this simple rule which I told you, the animal which is having black stripes on yellow ground, this simple rule may help you learn that Bengal tiger to discern. ये simple सा rule तुम्हारी help कर सकता है उस बंगाल टाइगर को क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में। discern means क्या है, आइडेंटिफाई। ठीक है, you will write down the meaning. discern means identify. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. And twill, यहाँ पे देखो twill, फिर यहाँ पे पोएट्री लाइसेंस का यूज हुआ है, it will होगा ये। ठीक है, twill do not go to tire with pain, he will only lap and lap again. If you are roaming forth an animal you see, यहाँ पे व्यू का मतलब क्या है, सी, बीस्ट एनिमल, स्ट्रॉलिंग, रोमिंग, वंडरिंग, व्हेन यू आर वंडरिंग, रोमिंग, एंड एट दैट टाइम यू सो एन एनिमल हु स्किन, ठीक है, हाइड मीन्स क्या है, स्किन, हुज स्किन इज कवर्ड, पेपर्ड क्या होता है, कवर्ड, हुज स्किन इज कवर्ड विद स्पोर्ट्स, जिसकी स्किन किससे कवर्ड, वो स्पोर्ट्स से, धब्बों से कवर्ड हो। देखो यहाँ साथ में पिक्चर में पता लग रहा है, अलग अलग ऐसे धब्बे बने हुए हैं कि जिसकी स्किन जो पेपर कवर्ड हो, किससे, स्पोर्ट्स से कवर्ड हो। एंड देन दैट एनिमल लैप ऑन यू, लिफ्ट, यहाँ पे जंप ऑन यू, LEAPT है बेटा, यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है। दैट एनिमल जंप ऑन यू, देन यू, एंड देर इज नो प्रॉफिट टू रॉयर बिकॉज ऑफ पेन, दर्द से रोने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दैट एनिमल विल लीप एंड लीप अगेन एंड दैट विल किल यू, और वो तुम्हें क्या कर देगा, मार देगा। सो यू कैन हाउ यू कैन आइडेंटिफाई लेपर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्पोर्ट्स, ठीक है, हिज स्किन दैट इज कवर्ड विद स्पोर्ट्स, उसकी स्किन जो है वो स्पोर्ट्स से क्या होती है, कवर्ड होती है। अब नेक्स्ट एनिमल को देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो पिक्चर भी दे रखी है साथ में, बियर, ठीक है। इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यू मीट अ क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress, ठीक है। if when you are walking around your yard, अपने यार्ड में ऐसे स्ट्रोलिंग कर रहे हो, रोमिंग कर रहे हो, then you saw a creature, an animal there, that animal hugs you very very hard, and when that animal hugs you, then you can identify that animal is bear. And if you are having any doubt regarding that, be sure, and I'm telling you, he will just only give you one more loving touch and then you will be killed. केयरस का मतलब होता है लविंग टच, एक ही बार और आपको लविंग टच देगा और आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ नविश माइट नन प्लस,
यहाँ पे अब क्रोकोडाइल और हैना को इकट्ठे उसने उठाया है, ठीक है। हालांकि डिस्टिंग्विश होते बेटा डिफरेंशिएट करना। बिस्ट ऑफ प्रे, भाई वो जंगली जानवर जो दूसरों का शिकार करते हैं उसे डिफरेंशिएट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। नविश, नविश नो सिखिया जिसे बोलते हैं, न्यू इन जॉब, ठीक है, नॉट ट्रेंड पर्सन, अनट्रेंड पर्सन, ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड नविश। जो अभी नया नया जो है वो किसी जॉब में आता है उसे नविश यूज़ किया जाता है। नविश माइट नन प्लस, नन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज बेटा, ठीक है, पजल। दैट नन प्लस दैट नविश कुड बी कंफ्यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग क्रोकोडाइल एंड हैना, क्रोकोडाइल और हैना का आइडेंटिफाई करने में वो कंफ्यूज हो सकता है। एंड टेल फ्रॉम द हैना दस, the crocodile you always may tell from the hyena thus that नविश could consider crocodile hyena and hyena crocodile, ठीक है। उन दोनों को वो ऐसे जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग उसे हो सकती है टू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स, बट दिस रूल विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दोज एनिमल। वट इज हैना कम विद मैरी स्माइल, कि हैना जो है हमेशा हंसते हुए आती हैं, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और अगर वो रोते हैं तो वो क्या है, क्रोकोडाइल्स है। इट मीन्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई crocodile with the help of his tears, and how you can identify hyena with merry smiles, हंसते हुए अगर कोई एनिमल है that animal is hyena, and if any animal is crying that animal is a crocodile। जैसे बोलते हैं ना crocodile tears, घड़ियाल के आंसू, ठीक है, मगरमच्छ के आंसू, ये वर्ड भी। और ये क्वेश्चन भी आता है बेटा, और राइट डाउन द प्रोवर्ब विच इज यूज फॉर क्रोकोडाइल, सो दैट इज क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है, ये प्रोवर्ब जो यूज होती है। देखिए हम नेक्स्ट लास्ट है आपका चैमेलियन और लिजार्ड, ठीक है, चैमेलियन और लिजार्ड के बारे में बात करते हैं। द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, बी चैमेलियन अपीयर जस्ट लाइक अ लिजार्ड। चैमेलियन किसके जैसे दिखाई देता है, लिजार्ड के जैसे। चैमेलियन पता ही होगा, गिरगिट विच चेंज इट्स कलर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो अपना कलर चेंज करता है। सो इट अपीयर्स जस्ट लाइक अ लिजार्ड, किसके जैसा दिखता है, लिजार्ड के जैसा दिखता है। इट हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लिजार्ड एंड चैमेलियन, दैट इज लिजार्ड इज हैविंग ईयर्स बट एंड ईयर्स एंड विंग्स, बट इट्स नॉट हैविंग ईयर्स एंड विंग्स। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कभी लिजार्ड के कान या भाई विंग्स कभी किसी ने देखे नहीं है, बट ये वही वेरी फनी नॉनसेंस वर्ड्स दैट इज यूज्ड। बट इट हैजंट एनी ईयर एंड एनी विंग, सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैमेलियन। देन यू कैन से दैट चैमेलियन इज नॉट हैविंग एनी ईयर और विंग, ठीक है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, it is the chameleon you see. If nothing is appearing on the tree, then you can say that which animal is there, chameleon is there. So the next one is you can say that the animal which changes its color according to the surrounding, that animal is a chameleon. So we can identify chameleon with the help of these traits. It's not having ears, wings, and it can change its color according to the surroundings. So these animals are told by the poet how you can identify these animals, कि कैसे इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मे बी गॉट द थिंग, शायद आपको बात समझ आ गई होगी बेटा। वर्ड्स मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि मैंने किन किन वर्ड का आपको मीनिंग बताया है। देखिए, एडवांस का मतलब होता है टू फेस, ठीक है, सामना करना। टॉनी मीन्स होता है येलोइश कलर। यू विल राइट डाउन, देन यू विल एबल टू दैट नो दैट व्हाट आई वांट टू से। पहले मीनिंग्स लिख लेंगे, उसके बाद आप समझेंगे, ठीक है। फिर है आपका और मैंने यहाँ पे बताया रोमिंग, रोमिंग का बताया स्ट्रोलिंग, ठीक है। और फिर नोबल वाइल्ड, ये तो बता दिया। बीस्ट एनिमल, ग्रीड्स, विशेज यू, स्ट्राइप्स हो गया आपका, लाइन्स, ओके। देन डिसन टू आइडेंटिफाई, और उसके बाद हाइड है स्किन, ओके। पेपर्ड है, कवर्ड, व्यू मीन्स सी, एंड बस लीप का जंप बताई दिया था। यहाँ पे लेफ्ट का मतलब भी क्या है, जंप है। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पे इन दिस वन वॉकिंग, स्ट्रॉलिंग, ठीक है, वॉकिंग का क्या होगा, स्ट्रॉलिंग। एंड केयरस, लविंग टच, केयरस का क्या होगा, लविंग टच। इन दिस वन इसमें नन प्लस कंफ्यूज, नविश, दैट न्यू इन जॉब, ठीक है, जॉब में कोई नया हो उसे बोलते हैं नविश। अच्छा, नीचे आते हैं, नेक्स्ट वन इज नथिंग इज हियर, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको मीनिंग ना पता हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, रीड दिस and try to do the assignment which I will send you.